The leadership of Prime Minister Narendra Modi is emerging as a guiding light, providing leadership and direction to the world. In the melody of hundreds of its languages and dialects, India lives as one. India grows as one. India celebrates as one. India is leading the world when it comes to innovations. Powered by the intent and intellect of India's talented youth, India has witnessed a massive leap of 41 places from 81 in 2015 to 40 in 2022 in the Global Innovation Index. India is the third largest startup ecosystem and is home to over 100 unicorns. Since 2014, the resolve of Digital India has ensured digital services for all, including e-governance, e-commerce, and e-learning, and transformed how people interact with each other and the government. The case of India, it is actually quite impressive. It's a logistical marvel how these programs that seek to help people who are at low income levels reach literally hundreds of millions of people. One thing that is striking is the use of the unique identification system, the Aadhaar. India's digital public infrastructure is also cutting edge. With the Unified Payments Interface, UPI, enabling digital payments nationwide. It is the first in the world for digital transactions, single-handedly accounting for over 40% of the world's online transactions. Its success prompted tech giant Google to recommend a UPI-like platform to the US Federal Reserve for digital payments. The India stack, starting with Aadhaar and UPI, Unified Payments Interface, so that everyone can make digital payments, is a remarkable achievement on a global scale. There's been no financial innovation of that scale and speed achieved in any other country. India's digital prowess is evident from the efficacy of the CoWIN platform. It was CoWIN that ensured that India's fight against once-in-a-century pandemic was collective and tech-enabled. It was CoWIN that facilitated the world's largest and fastest vaccination drive in India. Many countries also benefited by adopting India's CoWIN. The financial inclusion of over 477 million people with the opening of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana bank accounts has provided access to banking services, credit and insurance to people previously excluded from the formal banking sector. Direct benefit transfers to the bank accounts of millions has redefined the relation between people and the government. Real progress is one where everyone participates. India has graduated from women development to women-led development. The Prime Minister's social initiatives such as Beti Bachao, Beti Padhao have promoted gender equality, improved the sex ratio at birth, and empowered girls. India was far ahead of the game, and you continue to show the world exactly what investing in women can do. Making sure that cash transfers get directly into women's hands is a textbook example of what we call gender intentional policymaking. A testimony to the change girls and women are witnessing in today's India is the improved sex ratio at birth in decades, which has risen from 903 to 1,020 girls per 1,000 boys between 2014-2015 and 2019-2021. From the Permanent Commission of Women in the Armed Forces to have the highest number of women pilots in the world, from a significant percentage of women house owners, the highest number of women beneficiaries of startup and entrepreneurial loans and schemes under the Micro Units Development and Refinance Agency, Mudra, to providing security, such as the abolishment of triple talaq that has granted equality to Muslim women. A new vigor defines India's Nari Shakti, women power.
New India's odyssey is incomplete without the common Indian's stride. Since 2014, India's highest civilian honors, the Padma Awards, have honored individuals who have significantly contributed to society regardless of their social status or background. Transcending the dilemma between economy and ecology, India is taking the lead in promoting green economy, where, as the fastest growing economy in the world today, it has also witnessed remarkable increase in green cover as well as the use of renewable energy, and is ensuring a healthy ecosystem for animals and a better planet to live in. Its share of non-fossil fuels in total installed capacity grew from 16.25% in 2014 to 43% in 2023. That accounts for 40% of its power generation.
The Rasika Dance Academy with an Australian Indian fusion. Kudos Bank Arena, let's hear some noise! Woo! If you can see me, ladies and gentlemen, I'm looking straight ahead to the people up the top. Can I hear a bit of noise from the people up the top there? Beautiful! People up the top over there, can I hear some noise? Yes! That's the excitement that we're looking for, folks. Wayne, I can feel the excitement building, the energy, the tension. Everyone knows back home and also in the arena, it's not too long before we'll be able to see Modi ji himself. So everyone, make sure you get excited. We have many great performances ahead, and we have a lot of great singing, dancing, cultural events ahead of us. Dipti, how are you feeling about the upcoming performances? I'm feeling exciting. Seeing the crowd get bigger and bigger is making me more and more excited. We're all waiting for the big man here himself, and he will be here very shortly. Until then, please enjoy the jam-packed performances we have for you. Alrighty, ladies and gentlemen, thank you so much. On to our next wonderful performance. We go to what is often called heaven on earth. We are going to Kashmir, geographically the northernmost part of India. That's right, give it up for Kashmir! Woo! Continuing through the decades to ensure that their culture thrives. There has been no dearth of traditions and sanskars, recipes and heirlooms. One thing that has always connected the people is dance. Today you will see Kashmiri pundits celebrating India and their heritage across generations. A warm round of applause for our next act, the Kashmiri folk dance. Woo!
स्पर्शा करियो गुलो अर्श स्पर्शा करियो गुलो असना गिंदना करियो गुलो असना गिंदना करियो गुलो असना गिंदना करियो गुलो असना गिंदना करियो. The costumes, the song. The costumes, the songs, the dancing. That was amazing. I think they deserve another round of applause, please. Put your hands together, everyone. Now, we found out before that Aryan did Hindi for his HSC. I also speak Hindi, but Aryan speaks Gujarati too. So I asked him if he could teach me a few things in Gujarati. Well, for all the Gujis in the house today, I think we all know what's fundamental. I think we need to teach Dipti how to say her own name in Gujarati. So if you can repeat after me, Maru naam Dipti che. Maro naam Dipti che. Do we like that, everyone? All the Gujis in the house! What's another phrase you can teach me? What's a popular phrase you can teach me? Maybe we should teach you if you want to go out with your friends and have a good time. You might say something like, "Oh, mara dosto saate baar farwa mate jau chu." Ooh. Stumped her with that one. Slowly. We'll do it together. "Oh, mara dosto saate Umaro dosto sathe. farwa mate Oh my God. Favram. farwa mate Again. farwa mate Farva mate. jau chu." Jao chu. Do we enjoy that, everyone? Should we teach you most of Gujarati? We will practice some more, so my Gujarati is perfect by the end of the show. Now, we have seen Kashmir, and I think we should stay in the cold region. So let's go to Uttarakhand, Devbhoomi, a mystical land of mountains and exquisite landscapes. Maro Pahad Mahan. Chail Chabili Band Dance Group, representing this enchanting land of gods, proudly presents this performance to a beautiful array of melodies. The performance showcases a diverse ethnicity of Garhwali and Kumaoni cultural heritage via a plethora of colorful traditional costumes, unique jewelry, and the simplicity of its rhythmic folk dance and music. Breaking the barriers of any divisive factors, this beautiful Pahari folk dance is an invitation for the whole community to get together.
Ladies and gentlemen, what a wonderful performance. Keep your claps going. How good was that performance, ladies and gentlemen? Wayne, we've had some fantastic dance performances so far. Indeed. What are your thoughts on some of the dance performances we've had? What's been your favorite one so far? I'll tell you what, first of all, I'm going to use a few words here that I'm sure everyone else is going to use with me. Captivating, exhilarating, rhythmic, incredible, beautiful. I can keep going. I could keep going. What do you reckon, guys? Pretty good? Pretty incredible stuff. I just want to say, on behalf of the MCs, all the performers, you guys are doing an incredible job. Thank you so much. A day like today could not have been done without our supporters. We are grateful for them. We have another supporter, is the Education Centre of Australia, and for them, a small notice. I might read out that the Education Centre of Australia acknowledgement message is presented in 40 countries, and more than 60,000 graduates and campuses in Australia, the United Kingdom and India. Thank you once again to all of our incredible supporters. We've had a few, Arian. Absolutely. Wayne, thank you for thanking our supporters, but I just want to thank the audience so far. The energy that you've brought, the excitement that everyone has, please keep it up. We're loving the energy here. The next performance that we have is a fusion dance, incorporating both Kathak and Bharatanatyam elements. The performers will be depicting and celebrating unity in diversity. While we all have distinct cultures, beliefs, and values, we all have the privilege to learn from each other's differences and work towards a prosperous and peaceful world. This performance is a celebration of diversity. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Gitanjali Dance Studio to the stage. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, धरती यहाँ पहने 7 रंगों की चुनरिया। घनन घनन गिर गिर आए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा।
Ladies and gentlemen, how amazing was that performance? Keep the claps going. Look how amazing the performance looked. Did we enjoy that fusion dance, everyone? Do we want more fusion dances, everyone? Is that what we want tonight? Well, if you ask for it, you're going to get it. We've got many dance performances still coming today. We've got beautiful pots and heads. We've got garba. We've got lots of different dances coming today. So keep your excitement up. We're very excited that the arena is packing up today. So keep your energy up, and we're very excited to have you all here today. The following performance, like you all asked for, is a Bollywood fusion dance. The performance aims to embody a message of self-love and acceptance. Through a fusion of classical dance movements, they showcase the importance of standing up for oneself and being proud of one's unique qualities and imperfections. With each step, they demonstrate the power of embracing authenticity and celebrating individuality. Ladies and gentlemen, this is the fusion dance that you've been asking for, so please put your hands together for the next performers from Abhirami Natya Kshetra. So we're working through it. How is everyone feeling tonight? How are we enjoying the performances so far? All right.
one. Din ta din ta din ta ta din. Din ta din ta din ta ta din. Din ta din ta din ta ta tom ta ta ka chendu tim ta ta ka chendu tum ta ta ka chendu kedda kedda dum. Ta ka di ta ka chendu ta ka di ta ka chendu ta ka di ta ka chendu kedda kedda dum. Din ta din ta ka 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 din. Ta ka din 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 ta ka din. Tom tim ta tang ta ta ka dum 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 ta ta dum ta din ta ta din. Ta tang ta ta ka dum ta tang ta ta ka dum ta tang ta de ge ta ka ta tang ta de ge ta ka ta tang ta de ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Ta ta din ge ta ka ta ta din ge ta ka ta ga ta din ge ta ka ta ga ta din ge ta ka ta ga ta din ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Ta ga ta din ta ka dum 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 din ta din ta din ta ta din. Tang ta ding ge ta ka tang ta ding ge ta ka tang ta tik ge ta ka tang ta tik ge ta ka tang ta tik ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Tang ta din ta ka dum 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 din ta din ta din ta ta dam. Ta tang ta de ge ta ka ta tang ta de ge ta ka ta tang ta de ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Ta tang ta de ge ta ka ta tang ta de ge ta ka ta tang ta de ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Ta ga ta dik ge ta ka ta ga ta dik ge ta ka ta ga ta dik ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Ta ga ta ding ge ta ka ta ga ta ding ge ta ka ta ga ta ding ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Tang ta tik ge ta ka tang ta tik ge ta ka tang ta tik ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Tang ta tik ge ta ka tang ta tik ge ta ka tang ta tik ge ta ka din ta din ta din ta ta din. Ta ta din ta tik ta ka dum din. Ta ta dum ta tik ta ka dum din. Ta ga ta dim ta ka dum di. Ta ga ta dim ta ka dum di. Tang ga ta dim ta ka dum di. Tang ga ta dim ta ka dum din. Din ta din ta din ta ta din. Din ta din ta din ta ta din.
Yes, it's really exciting to be here. I think Mr. Modi is coming here after after 10 years, so it's a really special occasion for us, and we're really excited. And yep, it's going really good. It's fantastic. My name is Vishnu. I'm very excited that Modi is coming here. It's my first time seeing him. It's very exciting. It's one-time offer. I don't know what else to say. I'm out of words. I'm just very excited to see him. ढोलीड़ा ढोलीड़ा शेरवानी सैयर में खिंच रही दर में घुमो ढोलीड़ा ना ढोल बजा धम 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 धमक धम ढोलीड़ा धम धम बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा ढोलीड़ा धम धमक बजे ढोलीड़ा একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই এমন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ওই এমন। একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই এমন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ওই আবার। সেই ছবি খান নষ্ট করে কুঞ্জনা কুঞ্জনা, সেই ছবি খান নষ্ট করে কুঞ্জনা কুঞ্জনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। আলো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন, আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন। লাল পাহাড়ির দেশে যাবি, হারিয়ার মাদল পাবি, প্রেম রোদের আদর পাবি।
lies in the diversity of its people. One individual may die for another. And makes us stronger together. 5, 4, 3, 2, 1. और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मौजूद हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों का सिडनी में भव्य कार्यक्रम और ये भारतीय संस्कृति की झलक साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री को रेड कारपेट के साथ में उनका इस्तकबाल किया है। अतिरमणीयं तव तिरुरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे
अतिरमणीयं तव तिरुरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे कुण्डलमण्डित तेजस्वरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे अडिवरुन्नु पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे ट्राई कलर में साफ तौर से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अपने आप में, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के झंडों के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों देशों की दोस्ती और आगे एक तरीके से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत की ये तस्वीरें भी हैं और बेहद महत्वपूर्ण किस तरीके से प्रधानमंत्री अब सामुदायिक जो कार्यक्रम है वहां पर पहुंचे और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हमने देखा कि स्पेशल ट्रेन की बात हो, स्पेशल है कि प्रधानमंत्री को सुनने देखने के लिए जो क्रेज है वो अपने आप में अद्वितीय है। हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस इवेंट की सीमित संख्या या कहा जाए हजारों की संख्या होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं इस इवेंट को सुनने और देखने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों के आने के बाद भी, उनको अनुमति देने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनुमति नहीं दी जा पा रही क्योंकि वो पूरा हॉल एक तरीके से फुल है। तो ये दर्शाता है प्रधानमंत्री को सुनने आने वाले लोगों की संख्या को कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पे थे। जापान से शुरुआत करने के बाद पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद अब अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। हमने देखा कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तमाम बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आगे मिलकर सहयोग को बढ़ाया जा सकता है उस पर साफ तौर से बात हुई। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नामचीन लोग हैं, उन्होंने भी आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जो इस बात को दर्शाता है कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोगों में या ऑस्ट्रेलिया के तमाम नामचीन लोगों में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस प्रकार का क्रेज है। ये तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं और अब कम्युनिटी इवेंट पे प्रधानमंत्री का पहुंचना, और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी जब प्रधानमंत्री इस पूरे इवेंट को संबोधित करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो महज 2-3 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान थे और उस वक्त भी हमने उनके जो दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री थी वो देखा था। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के क्रिकेट मैच पे देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने
बहुत खुशी जाहिर की थी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के द्वारा उनके जो स्वागत किया गया था और भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहतर मौका और महज 2-3 महीने में के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाना ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के चेहरों की खुशी इस बात को इंगित करती है कि तमाम ऐसे क्षेत्रों को खोजा गया है जिन पर अब दोनों देश मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे तकनीक हस्तांतरण की बात हो, खास करके जो क्रिटिकल जो खनिज है उनको लेकर एक अपने आप में बहुत सहयोग की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बात की जाए भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और ये अपने आप में भारत को किस प्रकार से सहयोग दे सकता है। Well, photographs, selfies, everything is happening. Everything is happening. Let me just walk across to these people and ask them. Ladies, why are you standing here? Why are you standing here? I know Mr. Modi personally. Modi, you know Mr. Modi personally? Yes, I have met him in Delhi. You met him in Delhi? Yes. Have you seen this kind of excitement ever anywhere else outside of India? No, here, first time. First time you're seeing such kind of excitement? I met him in my shop in Canberra. Yeah, you met him in his shop in Canberra. Yes. Have you ever seen this kind of excitement? Yeah. You're also waiting to get a picture or to shake hands with Prime Minister Modi. Yeah. Is that what it is? Yeah. Why is he so popular, ma'am? Why do you want to shake hands with him? He's our Prime Minister. He's our Prime Minister. That's what you're saying. Okay, I'll make way. Otherwise, the ladies will be upset with me. That's what's going to happen. Oh, all of you have got your phones out. All of you are going to take pictures. You're supposed to be sitting in the VIP gallery waiting and you're all hugging the railings like fans, volunteers. Yeah, we want to be as close as possible to view. We've been waiting for this moment since morning. You've been waiting for this moment. What do you think is going to happen? Is the Prime Minister going to meet and greet, talk to all of you? Maybe. ऑस्ट्रेलियाई परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और यहाँ पर भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसकी मान्यताओं के आधार पर किसी मेहमान का जब स्वागत करते हैं उसकी तस्वीरें ये दिखाने बताने के लिए काफी है कि दोनों देश अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने के साथ में देखा जाए तो एक दूसरे को स्वीकारते नजर आ रहे हो। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये तस्वीरें इस बात का इशारा कर रही हैं कि हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय संस्कृति किस प्रकार से अपनी पहचान बनाए हुए और प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि निश्चित तौर से भारतीय अगर परंपरा में माना जाए तो वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण उस समय किया जाता है जब आप किसी शुभ काम को करने जाते हैं, कोई खास मेहमान आपके यहाँ आता है, आप उसके स्वागत के लिए एक बात रखते हैं। तो निश्चित तौर से ये तमाम वो परंपराएं जो भारतीय संस्कृति की छटा को दिखाती हैं, भारत की पारंपरिक व्यवस्था को दिखाती हैं और कलश, नारियल और तमाम प्रकार की वो जो प्रतीक हैं भारत के इस संस्कृति के, जो कहा जा सकता है कि जो मंत्रोच्चार जब किए जाते हैं तो उस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सारी चीज सुदूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ रही हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के अनुसार भी दोनों नेताओं का स्वागत किया गया है। और यहाँ पर ये जताने के लिए काफी है कि आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब And look at the cheer. Now the Modi begins, ladies and gentlemen. This is the Modi moment. Oh, 10 more minutes. 10 more minutes. It's 10 minutes. 10 minutes is on the clock. Now, you see the change? 10 minutes, 10 more minutes. They have to wait. Everybody will settle down a bit. But this group is already shouting Modi. I'm going to ask my friend here if you'll allow me, and you're going to allow me back, please. All right. Let me ask you guys. Hi guys, I just heard all of you were shouting Modi. But why Modi? Why not? You're from Gujarat. What do you expect? You're from Gujarat, so what do you Absolutely. expect? No, because we are from India. Because we know the man who's formed India.
You know the man. He's the Thala of India. He's the Thala. He's the Thala of India. He's the Thala of India. Very good. But tell me, what's so special about PM Modi? What is it that he's done? How long have you been in Australia? We have seen. We've been in Australia for 18 years. 18 years. 18 years. So last 8 years, what's changed? A lot of things changed. India. He's transformed He's India. transformed India. What has he done? What has he done? The digitalization that he's brought. Digitalization Digitalization that he's brought is amazing. The way he's brought poor people up in this radar is amazing. So he's really made a change. He's really made a change. Absolutely. And what about the Kashmir? What is the Kashmir now? Once again, we have the Kashmir back. So 370 abrogation. Exactly 370. They are having a G20 tourism summit there. Absolutely. Yes. Isn't that a proud moment? Exactly. Absolutely proud moment. I want still one more thing from Modi. Akhand Bharat. Oh, you want an Akhand Bharat? Modi, 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 Modi. So it's a Modi chant that's happening, and everybody has, I think, some common things to say. He's helped rise the stature of India. He's put India on the world map. He's brought in critical reforms. Thank you very much. Critical reforms. He's brought in critical reforms. That is important. I'm making my way back into the gallery because when he walks in, I will get stuck there, but we want to get you the emotions here. There are people from the Indian fraternity who are here. Hello, sir. If I may ask you, you're dressed in traditional attire. May I know your good name? Rajiv Jairam. Rajiv Jairam. Did I see you on the screen there as representing one of the communities? Yes. You did. You did. So That's all my right. camera is there. If you could turn around a little and tell me, why is the Indian-Australian diaspora so much in love with Prime Minister Modi? Oh, absolutely. Because he is. तो उस पर भी बात हुई है। तो भारत में कैसे निवेश के लिए बड़े काम किए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है और तमाम जो बड़े जो विश्व नेता हैं, जो व्यापारिक नेता हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद में इस बात का जिक्र किया कि भारत में Last 5-7 years? Yes. Since he's become the Prime Minister, it's been a completely different kind of identity that all of us have had. Can you put a finger and tell me, tell our viewers back at home, back in India, what is that difference that he's made? What has he done? What difference he's made is that he's allowed India to stand up to the world. No longer are we subservient to any other country. No longer are we at the mercy of anyone else. We are proud Indians, proud to be of Indian heritage and origin and representing ourselves here. You think that's translating among the community also in your engagement in day-to-day life in Australia? Absolutely. I mean, the 200 odd years of being subjects to another country has had an impact, and now we are coming out of that psychologically as well, and that's made a tremendous difference. That's some deep-rooted insight. Shedding that colonial mindset is what he had said during Independence Day, and you're saying that it's taken some time, but it's finally happening. It is happening, and we hope that will continue. Lovely. I think we're all building up. Australian MPs are coming. He's going to enter from here. I see some of the Australian MPs and parliamentarians also making their come back from their meeting. So they just had a meeting with him, and they're back. And now we'll have the two prime ministers enter from here. So I should make my way there, Yes, shouldn't I? yes, All sir. right. All the Thank you best. so much, Lovely. Jacob. Thank you. So there you go. So you get some news also. What the Prime Minister has done is he's also engaged with some of the Australian MPs who all made their way from here. And after the meeting, they have come around and they have come this way. And as they are walking in, the MPs are walking in. There is meeting and greeting that is happening. Leader oppositions are very popular. I think I can spot Peter Dutton there. I can spot Alex Hawke there. A lot of the MPs who are present there. So the shadow ministers are also present. The Labour ministers in government, they are also present. They're all walking in. And like I said, these MP seats are filling up. The seats in the galleries are also filling up. But these seats will fill up once the Prime Minister comes. Everybody's thinking, is the Prime Minister coming from there? No. I'll tell you why we picked this spot. Because we could get you the best view of Prime Minister Anthony Albanese and Prime Minister Narendra Modi walking out from there. That's where they're going to be walking out of. Let me go and talk to the ladies once again and get there and ask them. Let me ask you. So I'm back here with the volunteers. You're all occupying this place. Yes. Are you not misusing your position as volunteers? It's all okay. It's fair. It's fair when it comes to Modi ji के लिए सब कुछ माफ. 2 मिनट के लिए घूम जाएंगे. मेरा कैमरा उधर है. वो वहाँ जगह छोड़ के नहीं आ सकता. अब आप बोले मोदी जी के लिए सब माफ. सब कुछ माफ. It's fair when you want to see Modi. It's fair when you want to see Modi. It's all right. Everything for Modi. Okay, tell me. Why, ma'am? Why?
Why anything, everything for Have Modi? you seen that video? The things which he has done for his country? Yeah. Yes. And you can see, we never had this image after getting, even after getting independence. And this is the first time happening. Yes. तो मराठी मध्ये पूछू तो मोदी तुम्हाला छान फार वाटतं? खूप छान. No one can be best than Modi. So, very honest Prime Minister. Very honest Prime Yes, Minister. very honest. So, honest Prime Minister committed to India, and he's done something good for the country. I would say. Committed to the country. So committed to India. Well-being of the country, yes, To the well-being definitely. of the country. You are among the first people. आपको देखे बिना आगे निकल गए तो? कोई बात नहीं. We are sure he will see us. You're sure you'll see us. We will make sure our voice reaches up to him. Your So, yes. voice reaches to him. What are you expecting from him tonight? What are you expecting to hear from him tonight? Some good news about energy which he has. Yeah. We're just waiting for him to just You're spread just that waiting for around. him. Okay. Spread the positive energy around. Okay. Who's the gentleman who's walking around in the golden kurta there? That's Ramya Varanji. He is part of HSS. He's part of NHSS. He's going to be going on the stage to make the announcement, isn't yes. it? So we should ask Ramya Varanji what time Prime Minister is going to come out, isn't it? The right person to talk to. He's the right person to talk to. But you people are the right people to talk to. You're volunteers, you got the bombs. Thank you for covering us so many times. We are just here for 5 minutes. We are supposed to go up. You're supposed to go up. The volunteers are all supposed to go up. They're using their volunteer cards and all access cards so that they can kind of up close, really close to the Prime Minister and have a quick chat with him. Ladies and gentlemen, you can see the enthusiasm, isn't it? You can see the enthusiasm amongst the diaspora when it comes to Prime Minister Narendra Modi. And I think that's special. Oh, you guys are, hi. I'm good. Oh, you guys are all here also. Yes. Bharat Mata Ki Jai! Praveen, come here. Bharat Mata You Ki guys have done some fantastic work organizing and putting this together. But let me ask you, did it take a lot of convincing or did people voluntarily come forward? माँ भारती के लिए हम जो लोग बाहर रहते हैं तरसते हैं मोदी जी उसका प्यार लेकर आए आनंद जी आप उसका प्यार लेकर आए हैं We had too many people who wanted to perform. There was no dearth of people who wanted to perform and there were performers outside as well. Yeah. So we had ton of performances. No, and the audience which has come. You're saying we are expecting nearly 20,000 crowd. That's right. 20,000 people are here. Every seat is taken. Yeah. Pan around. Every seat is taken. The upper galleries, those people are still waiting to go up. Yes. What's the story there? Yes, the tickets are sold, I'm told. Yes, every ticket is gone and people are outside. Because of security reasons, people came late, so we cannot let them in. But every seat is gone. Every seat is gone. Every seat is gone. Every seat is gone. Thank we are you. live on the broadcast in India. Say hello to my mom and dad. I love you. Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata ki Jai! It's Modi ji's fever. Being a weekday, everyone is here. Yeah. I'm looking at 20,000 Australians who are there right in the bang middle of the week, and they've come to see a Prime Minister of another country. Only Modi. All right, guys, find your spot. The PM is about to come. There you go. The countdown says less than 1 minute. Pull up the ranks, ladies and gentlemen. The spotlight, the camera is not me. Camera is waiting to watch. That is Prime Minister Narendra Damodar Das Modi, who's going to make his way in. And I'm going to make my way through this crowd of the media and people. And I hope you can still spot me. I've made Arpit's job very tough, Vijay, because I've told him not to leave that spot. Right through the day, he's been hooked to that spot because that's the only way we've been able to get you these pictures. There you go. There you go. There you go. The countdown begins. Are you ready? Alrighty. I believe he's in the building. Everybody look up at the screens now. There you go. Those are the pictures. Those are the pictures of the Prime Minister arriving. The Prime Minister getting into the building. Prime Minister Narendra Modi will be stepping out of that vehicle. This is the vehicle that's been escorting him from the time he touched down in Sydney. He came in the same vehicle at Shangri-La yesterday. I remember this. And there he is, stepping out.
Oh, this is just fascinating, ladies and gentlemen. The energy here is fascinating. People are dancing. There is music. There is lights. The torches are on. Can you just believe it? It's just the Prime Minister and his counterpart, Anthony Albanese, and Prime Minister Narendra Modi walking in. The big hug that happened, and they're all entering. And there are the namastes. He's taking the greetings. He's wearing a black coat today over his traditional white kurta pajama. When he walked in yesterday, he was again wearing a bandi that was made out of recycled plastic. That's the cream one, and there's a blue one which he'd worn in Parliament, and he'd also worn to G7. Now he who are here amidst chants of Modi, Modi. Prime Minister Narendra Modi walks up, straight up to the dais. There you go. And there goes the cheer. There goes the cheer for Prime Minister Narendra Modi with the Indian diaspora. Cheering up to the upper galleries. Some exchanges that have happened between the two prime ministers, a show of solidarity with the Indian diaspora. So as the two prime ministers stand for a photo op and the national anthem, the Australian national anthem. Big cheer for the Australian national anthem, sung with heart by the Australians. Now it's time for the Indian national anthem. We
welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi. In a moment, I will introduce Australia's Prime Minister, Anthony Albanese, but first, take a look at the scale of tonight's event. It's huge. It's part of Australia's larger story. More and more people from India have come to Australia to call it their home. They've built businesses, started families, undertaken studies, established places of worship. You've created community while keeping your culture and traditions. We come from many different backgrounds in Australia, but we are stronger together. And tonight you can see that strength. In fact, you can hear it. Friends, the Indian diaspora is the nation's fastest growing. There are 750,000 people that have Indian ancestry in this country. And that includes the Treasurer of New South Wales, Daniel Mookhey, who swore his oath of allegiance on the Bhagavad Gita. Friends, he was the first Australian minister to do so, but he will not be the last. And so tonight we roll out the red carpet for the Prime Minister of India. We thank him for coming, but we want to pay a special tribute to all those Indian Australians who made this country so great. Enjoy the night. Thank you, friends. I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to elders past, present and emerging. And I am proud to lead a government that will give all of you, all Australians, a chance to vote in a referendum to recognise our First Peoples in our nation's constitution later this year. It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got.
Prime Minister Modi is the boss. Friends, I saw that myself when I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day one of the fourth test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It's a warmth, it is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it. Your million-strong community has contributed so much to this country. The people here tonight, your families, your communities, will always be the lifeblood of the relationship that India and Australia share. And tonight I announce that the new Centre for Australia-India Relations will be based in Parramatta. A place that itself is a testament to the vitality of the Indian-Australian experience. One that after last night has a proud Indian Australian, Samir Pandey, as its Lord Mayor. Congratulations. Now we want to see more connections, more Australian and Indian students living and studying in each other's countries and bringing those experiences home. More business leaders and artists and families sharing your experiences and your knowledge and your ideas. Prime Minister Modi and I have just unveiled a plaque for the foundation stone of the Little India Gateway in Harris Park. But tonight, and won't that be good to visit? But tonight, as Prime Minister, I want to say thank you. You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I am so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi.
नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलेन, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां
लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं।
सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है
सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हां, आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार में आईपीएल खेली थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री
जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा, ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो देश है आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने
बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भली भांति परिचित हैं। आपको याद होगा, जब मैं 2014 में यहां आया था, तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के, यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में, यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए, यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल, सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का
डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंध प्रणाली शुरू की थी।
इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो, भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। साथियों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर गहरी हो रही है। हाल में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ECTA एकता साइन किया है। अनुमान है इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले 5 वर्ष में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हम और रिलायबल सप्लाई चेन्स का निर्माण कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही, भी नया विश्वास मिलेगा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई डायरेक्ट, बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। और साथियों, आज
जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद कर किया। ये अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहे। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की मिला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? प्रॉमिस। मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, अपने साथ कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र परिवार को भी साथ लेकर के आए। उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Shadow Minister Jason Wood. Hi, Jason. Hi. Thank you. You just want to give him what you're going to say? Just a quick, your impressions about the conversation, and you had a meeting with the Prime Minister too, so we'll quickly, Yeah, we didn't actually talk. We just got the mail. Just said hello. Having a meeting with him tomorrow. Well, Prime Minister Narendra Modi, Minister Jason Wood here. Minister, how was the address? What did you think? Absolutely incredible. Like the reception from the
the party now. We are proud of you, Modi. We are proud of you. Keep up the back. साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Ladies and gentlemen, Kudos Bank Arena. Can we put our hands together one more time for the Prime Ministers of Australia and India? We thank you everyone for coming out tonight. We hope you all had a fantastic evening. I know on behalf
सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं।
वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है।
हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि यहां आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है।
यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्स में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार में आईपीएल खेल रही थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है
वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भली भांति परिचित है। आपको याद होगा, जब मैं 2014 में यहां आया था, तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा
कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा। बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर यह काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी UPI ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में
दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है, अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है, वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन बेचकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया, वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंध प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है।
जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो, भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। साथियों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर गहरी हो रही है। हाल में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ECTA एकता साइन किया है। अनुमान है इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले 5 वर्ष में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हम और रिलायबल सप्लाई चेन्स का निर्माण कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही, दुनिया को भी नया विश्वास मिलेगा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई डायरेक्ट, बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही
पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद कर किया। ये अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहे। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की मिला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? प्रॉमिस? मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, अपने साथ कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र परिवार को भी साथ लेकर के आए। उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलैंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से संसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित
ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी
बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है।
क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहाँ खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहाँ पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहाँ भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहाँ के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हां, आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ
तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार में आईपीएल खेल रही थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है, वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है, वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है
वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भली भांति परिचित है। आपको याद होगा, जब मैं 2014 में यहां आया था, तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं।
और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ है। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में, यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी UPI ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल, सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें
ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन,